फिनलैंड जो नाटो का सदस्य देश है, उसके राष्ट्रपति स्टब ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप और अमेरिका ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सम्मान और सहयोग नहीं दिखाते हैं तो इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना होगा। Question for both presidents. This week we have been witnessing a summit of leaders in China, which could be called the coalition of anti-Western countries by some. Are you worried about this coalition finding each other's and strengthening their policy towards the West? And about the meetings in Europe, NBA and Paris, are we to expect some concrete results when it comes to security guarantees, for example? What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West what is at stake. We need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. He's the head of a major democracy, the most populous democracy in the world. I think the real news here is Prime Minister Modi of India and his embrace of Vladimir Putin. That's a clear signal to the United States. मोदी से पंगा लेकर बड़ा भारी पड़ गया है। 5 या 50 बिलियन, सॉरी, करेक्ट मी द फिगर्स, बिलियन मार्केट रिलीज कर दिए हैं डॉलर्स। अब ये सोना खरीदते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। मूडीज एनालिटिक्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका गहरी मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। When you see people like Narendra Modi attending too, what do you make of his attendance? Well, there's a lot of bad news here. Donald Trump now sent India back toward Russia to grow closer to China. I'd like to offer, as a US citizen, some advice to the officials that currently represent me and several million Americans. If you slap a 50% tariff on India, India is going to look elsewhere for trade partners. So this pretense of not understanding why India would be at this meeting or why Modi, who doesn't always go, would be there, for me, that's what doesn't make sense. We know why. We know that the United States is unilaterally reshaping what was a multilateral trade organization, a multilateral trade relationship in the world. The only country that can benefit from that is China, ultimately. ट्रम्प टैरिफ विवाद में जैसे कि आपने बताया कि एक नए शख्स की एंट्री होते हुए दिख रही है, तो उनका नाम है जो वरिष्ठ अमेरिकी विश्लेषक है एडवर्ड प्राइस। अब उनका बयान सामने आया और उन्होंने ट्रम्प को जो है टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने और भारत से माफी मांगने का आग्रह किया है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि भारत पर उन्हें जीरो टैरिफ लगाना चाहिए और अब भारत से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। को बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ये खुद 15 अगस्त को पुतिन से मिला। पुतिन ने यह बोला कि जब से आप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 20% हमारी ट्रेड बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रंप, आपकी वजह से हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स ट्वब ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमने भारत के साथ सम्मानजनक दोस्ती नहीं की तो हम यह गेम हार जाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति का यह बयान उस वक्त आया जब चीन में मोदी को जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ देखा। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अपने बयान में पश्चिमी देशों को चेतावनी दिया कि अगर उन्होंने ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सहयोगी और गरिमापूर्ण विदेश नीति नहीं अपनाई तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स ने कहा कि वर्तमान समय में पश्चिमी दुनिया पुराने ग्लोबल ऑर्डर के अवशेषों को बचाने की कोशिश में व्यस्त है, जबकि नई राजनीति और आर्थिक शक्तियां तेजी से उभर रही हैं। उनका यह बयान दिखाता है कि भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स के बयान से साफ पता चलता है ऐसियों में शक्ति प्रदर्शन से पश्चिमी देशों में बेचैनी है। वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे। मोदी से पंगा लेकर बड़ा भारी पड़ गया है। एक तो इंटरनेशनली इन्होंने 5 या 50 बिलियन, सॉरी, करेक्ट मी द फिगर्स, बिलियन मार्केट रिलीज कर दिए हैं डॉलर्स। अब ये सोना खरीदते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। ना 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 ना, ये तो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया इन्होंने मुझे। सारे मेरे अपने अलाइज मेरा साथ छोड़कर चले गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा,
यूके ने भी स्टेटमेंट दिया, इजराइल तक ने स्टेटमेंट दे दिया, तो पंगा लेना तो पड़ गया है भारी। अब क्या करूं? अब कुछ नई तरकीब निकालता हूं, अब किसी और को पकड़ता हूं जिसके साथ दुनिया खड़ी नहीं होगी। सो इज कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी टुडे इन द मॉर्निंग, फॉर अस द मॉर्निंग एंड देयर प्रॉब्ली नाइट। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे खिसियाई हुई किसी की प्रेमिका होती है, वैसे एक ट्वीट लिखा है वापस। मतलब अस्पताल में है या अस्पताल में नहीं है, किसी को पता नहीं कहाँ से लिखा है, कहाँ से बोला है, लेकिन बड़े बीमार दिख रहे हैं। अब वो बोलते हैं, द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इस तरह का लाइन लिखना, इसको देख के तो जॉर्ज वॉशिंगटन आजाद फतेह कर लेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन पे गले में फंदा लगा के लटक पड़ेंगे कहीं से कि भाई कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी लाइन लिखेगा। एएनआई को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि एडवर्ड प्राइस न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और उन्होंने जो भारत को 21वीं सदी को आकार देने में एक निर्णायक खिलाड़ी बताया है। इसी के साथ वो बताते हैं कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रंप को छोड़ दिया, बोला यार ये बावला आदमी है। फिर इसने अभी ट्रंप को समझाया कि भाई आप किस रास्ते जा रहे हो, हम लोगों ने इतना सर खपाया है भारत के साथ दोस्ती करने में, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये आओ ये जाओ। और डेमोक्रेट्स ने भी, रिपब्लिकन ने भी, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार, सबसे हमने मत्थापच्ची करी है दोनों से। किसी तरीके से हम भारत को अपनी तरफ लेकर आए हैं, इतनी मेहनत करी, हमें 20 साल लग गए और तूने 2 दिन के अंदर पानी फेर दिया। ऐसा मत कर यार, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि इस बार भारत विश्वास नहीं करेगा। फरीद ज़कारिया का भी यही स्टेटमेंट है। CNN पे फरीद ज़कारिया का अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है, आप जाइए देखिए उसको। और फरीद ज़कारिया यही बात बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, इस बार भारत ना मुड़ के विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें 20 साल से ऊपर लग गए थे भारत को कि भारत तुम्हें ट्रस्ट करे। भारत तुम्हें डे 1 से ट्रस्ट नहीं करता था, भारत तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता। भारत को 20 साल लगे तुम्हें ट्रस्ट करने में, फिर तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब वो गया, अब नहीं आ रहा वापस। यही चीज समझाई उसने। बोला पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, जमींदारी, ठीक है, चौधरी वडेरा, ये पाकिस्तानियों का दिमाग ही इतना है, ठीक है। इन्होंने ट्रंप में देख लिया कि ये आदमी थोड़ा सा हिला हुआ है इस मामले में। इन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, ये तो टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी वडेरा है, ये टिपिकल, यानी कि मुल्क को नुकसान पहुंच जाए, मुझे फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया चाइनीज को लेकर आए। इन्होंने अपना क्रिप्टो का एक पूरा इदारा बनाया जो क्रिप्टो के साथ डील करता है, और ये उस चाइनीज बंदे के थ्रू, जो कि इसका चीफ एडवाइजर है इस पाकिस्तानी डिपार्टमेंट का क्रिप्टो का, दे वेंट एंड दे गॉट इन टच विद ट्रम्प्स फैमिली। ट्रंप नहीं, ट्रंप की फैमिली, उसके परिवार वालों को, उसको। अच्छा, पाकिस्तान में भी यही चीज होती है दोस्तों, पाकिस्तान में तो यही चीज होती है। आसिम मुनीर पाकिस्तान को खड्डे में डाल देगा, उसकी अगर फैमिली को बेनिफिट हो जाए। यही चीज आप देख रहे हैं कि जरदारी ने करी, पाकिस्तान खड्डे में जाए, जरदारी फैमिली को फायदा हो जाए। नवाज शरीफ के परिवार ने क्या बोला, पाकिस्तान खड्डे में जाए, नवाज शरीफ फैमिली को फायदा हो जाए। ये तो पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो एलिट है, उसका चलन है। उसको लग गया कि ये जो बंदा डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो बिल्कुल ही इज टिपिकली अ पाकिस्तानी वडेरा, टिपिकली पाकिस्तानी एलिट टाइप का डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका खड्डे में जाए, मेरे फैमिली को फायदा हो जाए। उसने तार के तार मिलाए। यहां पे ये क्या कह रहा है कि आप देखो, जो आपने इंडिया के साथ सलूक करा है ना, आपके बाकी लोग, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं अभी, ये सारे के सारे क्या सोच रहे हैं अभी? ये कह रहे हैं यार, अगर इंडिया के साथ ऐसा हो सकता है तो हम कौन सी खेत की मूली है यार, ये तो हमें तो निपटा ही देगा, हम तो इतने छोटे छोटे से। व्हेन ही कैन डू दिस विद इंडिया, हु आर वी? अगर ये इंडिया को धोखा दे सकता है तो हमें भी धोखा दे देगा। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे अमेरिका से, धीरे धीरे नहीं यार, बड़ी तेजी से अमेरिका से लोग राइज कर रहे हैं, उठ रहे हैं, और ट्रंप के खिलाफ आवाजें और जोर पकड़ रही हैं।